Match the following: Durban Oaks Conference, UN Peacekeeping Mission to Suez Canal, establishment of UN Development Programme, establishment of UN Environment Programme, a question that came in December 2024. Next question that came in December 2024 in international relations from the organization sector itself. Who is the first woman Director General of WTO? Following were the options: Ngozi Okonjo-Iweala, Mike Moore Subachi, Peter Sutherland, Pascal Lamy. Third question from December 2024 itself. Identify true facts about regional organizations. East Asian Summit founded in 2005. Shanghai Cooperation Organization founded in 2000. Nordic Council founded in 1952. Asian Regional Forum founded in 1994. SAARC founded in 1987. Fourth question. Arrange the Director Generals of GATT or WTO as per their tenure in chronological order. Options were Eric Wendman White, Oliver Long, Arthur Dunkel, Peter Sutherland, Ngozi Okonjo. ये सारे क्वेश्चंस दिसंबर 2024 में पूछे गए थे और ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस जून 2025 में भी पूछे गए थे. इससे हमें ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस में और हमें उन ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ना किस तरह है. जैसे कि हमें सिर्फ WTO के बारे में पता नहीं होना चाहिए, बट उनके जितने भी जनरल्स डायरेक्टर जनरल्स थे उनके बारे में भी पता होना चाहिए, उनकी क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस डेट में आई है ये पता होना चाहिए, UN के कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स या अलग अलग पीस कीपिंग मिशंस जो कि बहुत फेमस हैं, UN से आते हैं, वो हमें पता होना चाहिए. लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये सब कुछ एक बुक कवर कर लेती है. कुछ दो क्वेश्चंस को छोड़ के, जैसे कि डायरेक्टर जनरल्स के क्वेश्चन को छोड़ के, बाकी ये बुक सब कुछ कवर कर लेती है एंड्रयू हेवुड की. एंड हेलो माय नेट चैम्पियंस, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशंस और ये ऑर्गेनाइजेशंस का पहला पार्ट होगा जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट से हम ऑर्गेनाइजेशंस को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो UN हो, आसियान हो, सार्क हो, WTO या फिर IMF हो, उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज हम वो फैक्ट्स करेंगे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो कि इस बुक में से, ग्लोबल पॉलिटिक्स बुक में से आते हैं. और साथ ही में हमने अभी हमारे PYQs देखे उसमें जैसे WTO के जो जनरल्स हैं उनके बारे में पूछा हुआ था, तो हम उनके नेम्स भी पढ़ेंगे और हम एक छोटी सी ट्रिक सीखेंगे उनके नेम्स को मेमोराइज करने के लिए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि UN से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स इस बुक में से आते हैं. 1994 में डर्बन ओक्स कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे USA, सोवियत यूनियन, UK, चाइना सब एक साथ होते हैं और इनका एम होता है कि वो लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, फ्यूचर बनाएंगे UN का. 1945 में जो UN चार्टर है सैन फ्रांसिस्को में, उसको अप्रूव किया जाता है बाय 50 स्टेट्स. पोलैंड यहाँ पे पार्ट नहीं था. पोलैंड जो है वो एज अ 51 ओरिजिनल मेंबर वो ज्वाइन करता है अक्टूबर में और तभी से 24 अक्टूबर 1945 को UN पूरी तरह से स्टैब्लिश हो जाता है. 1946 ट्राइविग ली, नॉर्वे अपॉइंटेड सेक्रेटरी जनरल. 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स adopted. 1950 Security Council approves military action in Korea. 1950 UN High Commissioner for Refugees. 1953 Dag Hammarskjöld appointed as Secretary General. 1956 First UN Peacekeeping Force sent to the Suez Canal. 1960 UN operation in the Congo established to oversee the transition from Belgian rule to independence. 1961 Youth Hunt Boma appointed Secretary General. 1964 UN Peacekeeper sent to Cyprus. 1965 UN Development Programme UNDP founded. 1968 General Assembly approves the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. 1971 People's Republic of China replaces the Republic of China, Taiwan at the UN Security Council. 1972 First UN Environment Conference is held in Stockholm, leading to the establishment of UNEP. 1972 First UN Conference on Women in Mexico City inaugurates International Women's Year. This question came in June 2025 itself. 1972 Kurt Wildheim appointed Secretary General. 1982 Xavier Perez Peru appointed Secretary General. 1990 UNICEF convenes the World Summit for Children. 1992 Boutros appointed as Secretary General. 1992 the Earth Summit in Rio approves a comprehensive plan to promote sustainable development. 1992 Security
Council issues an agenda for peace, highlighting new approaches to peacemaking, peacekeeping, and peace building. 1997, Kofi Annan appointed Secretary General. 2000, General Assembly adopts the Millennium Development Goals. 2002, International Criminal Court was established. 2005, UN Peacekeeping Mission was established. And 2007, Ban Ki-moon, South Korea, appointed General Secretary General of UN. इसके अलावा हम यूएन के एनवायरनमेंट या डिज़ास्टर या विमेन और या फिर हेल्थ से रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, हम जब यूएन के बारे में डिटेल वीडियो लाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, उसमें कवर करेंगे. For now, we will move to the next part, that is studying the facts of the Bretton Woods system. और इसमें हम WTO, IMF, GATT, इन सब के इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और इन सब के जनरल डायरेक्टर जनरल्स कौन कौन थे, उनकी क्रोनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब देखो, इस ट्रेड वॉर के टाइम पे ना ब्रेटन वुड्स की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये आई ही ट्रेड को संभालने के लिए थी. 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ग्रेट इकोनॉमीज़ थी, जैसे कि यूके हो गया, फ्रांस हो गया, वो सब लोग बुरी तरह से टॉर्न हो चुकी थी. वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके थे. और इसलिए, और साथ ही में जो हमारा ग्रेट डिप्रेशन था वो आया भी इसलिए था क्योंकि प्रोटेक्शनिज़म बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा था. प्रोटेक्शनिज़म का मतलब है कि आप ना, जो कंट्री है वो टैरिफ्स लगा देती है इम्पोर्टेड गुड्स पे. जो भी गुड्स वो मंगवा रही है उसको टैरिफ लगा देती है ताकि वो गुड्स जो है वो महंगे हो जाएँ, ठीक है. और साथ ही में उन पर कोटाज लगा देती है. वो ये रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि जो दूसरी कंट्री है वहाँ से कितने प्रोडक्ट्स आएंगे. सब्सिडीज़ देती है, जो उसकी अपनी कंट्रीज़ होती हैं, अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है. और जो इम्पोर्ट्स हैं उन पे या तो बैन लगा देती है या फिर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन कर देती है. जैसे अभी फ़िलहाल इंडिया कर रहा है अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए या मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए. लेकिन उसकी वजह से होता क्या है कि कंज्यूमर जो है उसको बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे करना पड़ता है. और साथ ही में कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं इस अनइक्वल ट्रेड को लेके, जैसे कि अभी चल रहा है यूएसए और इंडिया के बीच में, चाइना के बीच में, इन सब के बीच में ट्रेड वॉर चल रही है, राइट. तो इसलिए ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बारे में हो सकता है कि इस बार काफ़ी कुछ पूछने को मिले. हम देख सकते हैं कि इस बार काफ़ी कुछ आए इनसे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट देम. मेकिंग ऑफ द ब्रेटन वुड्स सिस्टम. ब्रेटन वुड्स सिस्टम आता है अगस्त 1944 में, जब यूएसए, यूके और 42 अदर स्टेट्स जो हैं, कंट्रीज़ जो हैं, वो एक साथ मिलती हैं यूएन मॉनेटरी और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस में. एक स्मॉल से टाउन में होती है वो, ब्रेटन वुड्स में, न्यू हेमिस्फेयर में. कि ये फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस होती है कि हम एक नया ऐसा इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर बनाएंगे जो कि पोस्ट वॉर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल और मॉनेटरी सिस्टम है उसको बदल के रख देगा. इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट आउटकम था इस कॉन्फ्रेंस का, वो था ब्रेटन वुड्स का प्रोसेस, ठीक है. कि यहाँ पे 3 नई बॉडीज़ जो हैं वो स्टैब्लिश होती हैं और उन बॉडीज़ का नाम है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि 1947 में ऑपरेशन में आती है. इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, जिसको हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, ये ऑपरेशन में आता है जून 1946 में. देन द जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, GATT, विच वाज रिप्लेस्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, 1995 में. ये जो GATT है इसको पार्ट देखा जाता है ब्रेटन वुड्स सिस्टम का, लेकिन ये एक UN की कॉन्फ्रेंस थी ऑन ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, 1948 में हुई थी जनवरी में. उसके बाद से ये ऑपरेशन में आया था, लेकिन पार्ट इसको ब्रेटन वुड्स सिस्टम का ही देखा जाता है. लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए कि GATT कब आया, तो इट वाज इन 1948. ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम के साथ आया नहीं था, इसको एज अ पार्ट देखा जाता है. IMF से शुरू करते हैं और IMF के जितने भी डायरेक्टर जनरल्स हैं उनका मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लिस्ट दे दी है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है. इसको आपको सीरीज़ वाइज याद करना है और इसको सीरीज़ वाइज याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा मेमोनिक बनाया है, और वो है कैमील रूट गया था अपने सन पेरी से, फिर जॉन आया दोनों को समझाने के लिए. उनकी लड़ाई का रीज़न जासूस माइकल था, जिसने खोल दिया था रैट्स को डोमिनोज का जो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था क्रिस्टीन और क्रिस्टीना ने. इसके अलावा एक छोटा भी हम इसको कर सकते हैं. कैमील रूथ पर पेरी जॉन, माइकल ने रैट्स को डोमिनोज खिलाया, क्रिस्टीन और क्रिस्टीना हंस रही थी. इसी तरह से मैंने आपको WTO के डायरेक्टर जनरल्स की भी लिस्ट दी है, उनको भी आपको सीरीज़ में याद करना है और उसके लिए भी मैंने एक मेमोनिक बनाया है. अ वाइट मैन लॉन्ग एंड ड्रंक केम फ्रॉम सदर्न लैंड टू रेंट मोर सुपर पैंट्री, देन पास हिज लैंड टू हिज सन रॉबर्टो एंड डॉटर नगोसी.
सेम ही WHO के डायरेक्टर जनरल्स मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिए हैं, इनको भी आपको सीरीज़ में ही लर्न करना है। और इसके लिए भी मैंने एक मेमोनिक बनाया है। ब्रॉक ने कैंडल जलाया, हाफ रोशनी ब्रटलान तक पहुंची, ली ने स्टॉर्म को चेन से रोका और टेड्रॉस ने जीत लिया। ये जितने भी मेमोनिक्स हैं, ये मैंने भी अपने लिए एग्ज़ाम में इनसे ही काम किया था और इनको इसी तरह से याद करा था, याद रखने के लिए। सब चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, तो ये मैंने आप लोगों के लिए भी यहाँ पे लिख दिए हैं। अब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करते हैं और सबसे पहले हम EU करेंगे। हम EU या फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को इस मेमोनिक से याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनमें हमें डेट्स भी लर्न करनी है, उनके जो ईयर्स हैं कि किस ईयर में ग्रीस ने ज्वाइन करा, ये सब कुछ हमें उसमें लर्न करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे मेमोनिक्स को यूज़ नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे डायरेक्टली इनको याद करना होगा। ये पूरी एक हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन है, जैसे कि 1951 में ट्रीटी ऑफ पेरिस, 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम, 1967 में यूरोपियन कम्युनिटी वो एस्टैब्लिश्ड, 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड एंड UK ने ज्वाइन करा था EC को, 1981 में ग्रीस ज्वाइंस द EC। ये पूरा करके 2013 तक चलता है। और यहीं से लास्ट टाइम 1981 ये क्वेश्चन आया था कि व्हेन डिड ग्रीस ज्वाइन द EC, ये 1981 था इसका आंसर। और बहुत हाई चांसेस हैं कि उन्होंने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो वो आगे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। नाउ वील मूव टूवर्ड्स द रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी हम डेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अभी हम सिर्फ उनकी इस्टेब्लिशमेंट डेट्स देखेंगे, उनकी बारे में डिटेल हम नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले आता है अफ्रीका, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन हो गया, 2000 में इस्टेब्लिश हुआ। सेंट्रल अफ्रीकन कस्टम्स एंड इकोनॉमिक यूनियन हो गया, 1966 में इस्टेब्लिश हुआ। इसी तरीके से अमेरिका के कॉन्टिनेंट में नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, नाफ्टा, और मेकासुर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स हो गई, सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट हो गया। फिर इसी तरीके से एशिया में आसियान हो गया, आसियान रीजनल फोरम हो गया, ईस्ट एशियन समिट हो गया। ये एशिया वाली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती हैं। सार्क हो गया, GCC हो गया, शंघाई कॉर्पोरेशन, ये सब तो आता ही आता है। एशिया पैसिफिक में APEC हो गया, पैक हो गया, पैसिफिक आइलैंड फोरम हो गया। फिर यूरेशिया आ गया, यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी हो गई, ब्लैक सी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हो गया। यूरोप में आ गया, यूरोपियन यूनियन आता है, काउंसिल ऑफ यूरोप भी पूछा है, नॉर्डिक काउंसिल पूछा था पिछली बार, बेनेलिक्स इकोनॉमिक यूनियन। और यूरो अटलांटिक में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हर बार पूछा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन यूरोप। तो ये थी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की। मैं इसके अलावा और भी वीडियोस लेकर आऊँगी इनके बारे में, कि ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स के बारे में और भी फैक्ट्स के बारे में उनके ऊपर बात करेंगे, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशंस को पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकें। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। और मुझे और किस चीज़ पे वीडियो बनानी है प्लीज़ मेरे को बताइएगा। और मैं मंडे से आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। हम हर मंडे करंट अफेयर्स किया करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल एंड सब्सक्राइब करने के लिए पूरा और सब्सक्राइब कीजिए, उसमें जो ऑल वाला बटन है वो दबाइए, ताकि आप लोगों को पता चले जो भी मेरी वीडियो आए तो आप लोगों को उसके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और हम लोग हर मंडे मिलेंगे करंट अफेयर्स के सेशन के लिए। ओके, बाय बाय।